Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Osama Shah. 22 people have died in the massive fire that broke out in the gaming zone in Gujarat's Rajkot on Saturday evening. This is what the officials have said. Now, Chief Minister Bhupendra Patel had instructed officials to prioritize arrangements for immediate treatment of the injured. The fire officials say that the temporary structure collapsed and that the gaming zone owner has been booked for negligence. An SIT has also been formed to probe the clause and lapses. The gaming zone is owned by a person called Yuvraj Singh Solanki. We will be registering an offence for negligence and the deaths which have occurred. The further investigation will take once we complete the rescue operations here. आज राजकोट में बहुत दुखद घटना घटी हुई है। राजकोट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ये गेम जोन में आज आग लगने की वजह से आज बहुत गंभीर लोगों की बच्चों की जान गंवाई है और अभी फायर ब्रिगेड की टीम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सके, इस तरह की कार्यवाही चल रही है। जिस लोगों ने ये घटना घटे उसमें जो भी उन्होंने बेदरकारी दिखाई है उसके सामने सरकार जरूर योग्य निर्णय लेके उसके सामने जरूर से कार्यवाही करेंगी। And Radhika Ramaswamy joins us to get us more details on this story. Radhika, it is a massive, massive tragedy, really unfortunate. Give our viewers a sequence of events to understand how this mishap actually happened. Right. This incident happened at about 4:30 p.m. That's when this tragedy struck. At least 22 people, as you mentioned, were killed after this massive fire broke out at about 4:30 p.m. at the CRP game zone, which is in Rajkot. Several fire tenders rushed to the spot immediately after the fire broke out. Efforts, of course, underway to douse the blaze. Police say there are at least about 9 children among the casualties, or more children could be part of casualty. Those numbers are yet to be confirmed. Cause of the fire at this point is yet to be certain. An SIT has been formed to investigate this. Even as rescue is priority, investigations are underway. A case will be registered against the owners and those responsible. This place is owned by Yuvraj Solanki. That's what the officials there have said. So there will be a case registered against the owner and the others who are associated with this gaming company. Of course, the attempts to douse the fire are underway. Firefighting team, unfortunately, facing difficulties in carrying out this operation because the temporary structure has unfortunately collapsed due to wind velocity. Now, of course, Chief Minister Bhupendra Patel has promised compensation 4 lakh, which will be provided to families of deceased, and 50,000 to those injured. He has also instructed Municipal Corporation and Administration for immediate rescue. He will also be visiting the spot tomorrow morning. State DGP also directing his team to inspect game zones in the state and close down those that are running without any fire clearance. Prime Minister Modi, of course, Gujarat Chief Minister Amit Shah, Rahul Gandhi, all expressing deep anguish over the loss of life, but extremely tragic news. Fire breaking out at about 4:30 p.m. when multiple people were inside this particular place and many children, involved in gaming activities there. That is when this happened. It's a weekend, of course, it was crowded. That is when the fire struck, and now, of course, the death toll stands at 22. More people are missing. Efforts at this point on to rescue people who are perhaps stuck in this gaming zone. All right, Radhika Ramaswamy, thank you very much for getting us all the latest development in that story, that tragedy that has struck Rajkot. A fire took place at the Rajkot gaming center. 27 people have died, and this fire that broke out at a gaming zone in Gujarat's Rajkot. The Chief Minister has also
instructed officials to prioritize arrangements, and the fire officials have in fact said that the owner will be booked for negligence. In fact, the Gujarat Home Minister Harsh Sanghvi also spoke about this incident. Let's listen in to what exactly he had to say. देखिए, आज राजकोट में एक बहुत ही दुखद दुर्घटना बनी है। ये दुर्घटना में अनेक परिवारजनों ने बच्चों की जान गंवाई है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के निर्देश से मैं अभी राजकोट जा रहा हूँ। राजकोट में आज रात को ही जो SIT बनाई गई है, वो SIT And West Bengal is set to brace for impact of severe cyclone Remal on Sunday. The IMD has issued a red alert. It is the highest category of warning for some districts on Sunday. Now, Kolkata Airport has suspended flight operations for both May 26th as well as May 27th. The authorities of the Kolkata Airport have decided to suspend flight operations for 21 hours from Sunday noon in view of the possible impact of Cyclone Remal. This is what an official has said. The precautionary measure was taken after a meeting of all the stakeholders of the Netaji Subhash Chandra Bose International Airport in Kolkata on Saturday. On to some election news. Peaceful polling was witnessed across 58 constituencies in 8 states and union territories in phase 6 of the Lok Sabha elections. Now till 7:45 p.m. on Sunday, 59.06% voter turnout was recorded. The highest voter turnout in phase 6 was recorded in West Bengal, which was over 52%, and the lowest voter turnout was recorded from Delhi. By the end of Saturday, elections will be completed in 486 of the 543 Lok Sabha seats. Polling will also be completed in Haryana, Delhi, and Jammu and Kashmir. In fact, in Jammu and Kashmir, Anantnag and Rajouri recorded a turnout of 52.28%, which is the highest in 35 years. And Defence Minister Rajnath Singh, in an exclusive interview with NDTV, said that the North-South divide will be history, and that the BJP and its allies are moving towards their target of 400. As the Lok Sabha polls for 2024 draw to a close, I am not only joined by the Defence Minister of India, but one of the senior most politicians of BJP of this country, and somebody who has had a very successful innings throughout the politics that he has done. Mr. Rajnath Singh, welcome to NDTV. Thank you very much. राजनाथ जी, मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछ लूं कि अब चूंकि 90% चुनाव 2024 का पीछे है हमारे, कि जो सबसे पहली बात थी लोगों के दिमाग में इस समय है कि बीजेपी एक तो कितनी सीटें ला रही है, और दूसरी बात ये कि जो आप लोगों का नारा था कि अब की बार 400 पार, वो असल में 400 पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि 400 पार की बात जो हम लोगों ने कही थी, वो हमारा केवल नारा नहीं था, वो हमारा एक संकल्प था जो देशवासियों के समक्ष हम लोगों ने रखा था। अब तक जो 6 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं, और उससे हम सबको जो रुझान अभी तक जो प्राप्त हुई है, उससे हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 400 पार के अपने संकल्प को पूरा करने में हम कामयाब होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको लगता है कि जो दक्षिण में आपको रिस्पांस मिल रहा है, उससे जो एक तरह से एक बात या एक मोमेंटम सा बनाने की कोशिश थी, दक्षिण वर्सेस उत्तर का, नॉर्थ वर्सेस साउथ की बात थी, उस बात पे भी इस बार अंत लग जा, इस पूर्ण विराम लग जाना? देखिए, नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात अपोजिशन के लोग बहुत पहले से करते रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि नॉर्थ साउथ का डिवाइड इस बार पूरी तरह से समाप्त हो गया है। किसी के मन में यह बात नहीं है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के प्रति जन सामान्य में विश्वसनीयता बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। भारत की राजनीति में हमारे प्रधानमंत्री ने एक अपनी साख बनाई है, एक अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है। लोगों को भरोसा है कि मोदी जी ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं कि जो वह कहेंगे वह करेंगे, उनके वर्ड्स और उनके डीड्स, इसमें किसी भी सूरत में अंतर नहीं होगा। और प्राइम मिनिस्टर रहते हुए जिस तरीके से उन्होंने देश का स्टेचर इंटरनेशनल कम्युनिटी में बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है,
इससे भी लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड, एक गौरव की अनुभूति लोगों को होती है। इकॉनमी का जहां तक प्रश्न है, इकॉनमी की साइज में आपको जानकारी है कि 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उस समय भी हमारा भारत इकॉनमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में वह 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन 2014 के बाद 8 वर्षों के अंदर इकॉनमी की साइज के मामले में यही भारत जंप लेकर दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अब वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सर्वाधिक तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अब इसमें कहीं दो मत नहीं है कि 2027 आते आते भारत की इकॉनमी दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ी हो जाएगी। जब मैंने इकॉनमी की साइज हमारी दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में होगी। तो इन सब सारी चीजों से जन सामान्य का भरोसा लोगों के अंदर पैदा हुआ है। तीसरा एक मेजर अचीवमेंट यह है कि 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर हुए हैं मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। आजाद भारत के इतिहास में किसी भी व्यक्ति के प्राइम मिनिस्टर रहते हुए इतनी बड़ी संख्या में लोग गरीबी की रेखा से बाहर नहीं हुए, जो कामयाबी मोदी जी को हासिल हुई है। देश में जब भी कोई एक मेजर क्राइसिस पैदा हुई है, उस मेजर क्राइसिस को जिस तरीके से खूबसूरती से उन्होंने हैंडल किया है, उसकी भी सराहना केवल भारत में ही नहीं हो रही है, दुनिया के दूसरे देशों में हो रही है। अब आपको मालूम होगा कोरोना की क्राइसिस, उस कोरोना के क्राइसिस को जिस तरीके से हम लोगों ने फेस ही नहीं किया, बल्कि मैं कह सकता हूं उस क्राइसिस पर हम लोगों ने विजय प्राप्त की है। इतनी बड़ी क्राइसिस होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की इकॉनमी को हम लोगों ने प्रभावित नहीं होने दिया, उस पर एडवर्स इंपैक्ट ज्यादा नहीं होने पाया। यही स्थिति बनी रही। वैक्सीन लगभग 9 के बराबर थी भारत में। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हमारी गवर्नमेंट के प्रोत्साहन पर, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा हर प्रकार का असिस्टेंस प्रोवाइड करने की आश्वासन पर करिश्माई काम किया हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, और इतनी वैक्सीन बनाई कोरोना की कि केवल हमारे देशवासियों को ही उसकी 2 डोज या 3 डोज नहीं लगी, बल्कि विश्व के 100 देशों को हम लोगों ने यह कोरोना वैक्सीन भी ये प्रोवाइड की है। और सबसे बड़ी बात कोरोना क्राइसिस का एक मैं आर्थिक फ्रंट पर अचीवमेंट मानता हूं, वो अपने में अनपैरेलल है। नहीं, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी इकोनॉमी, जिसकी अर्थव्यवस्था इस कोरोना क्राइसिस में प्रभावित न हुई हो, उस पर एडवर्स इंपैक्ट न हुआ हो, लेकिन भारत ने नहीं होने दिया। इसकी भी क्रेडिट हमारे प्राइम मिनिस्टर को ही आती है। All right, you can watch that entire interview with Rajnath Singh on NDTV tomorrow. And Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini has spoken to NDTV exclusively, where he said that BJP will win all the 11 seats in Haryana. He also said that Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been misleading people and that Congress should release a white paper on employment. Listen in. साहब, कांग्रेस कहती है कि एंटी इनकम्बेंसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है और भी कई इशू है, उसको कैसे देखते हैं जो कांग्रेस कह रही है? मैं कांग्रेस को ये बार बार कह रहा हूँ, मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पीछे भी चैलेंज किया था। मैंने कहा था कि आप श्वेत पत्र जारी करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को बताएं कि हमारी 10 वर्ष की सरकार रही, कितना रोजगार दिया, किस आधार पर दिया, कौन सा पैरामीटर आप अडॉप्ट किया था, बताने का काम करें। हम बता रहे हैं ना, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया और कांग्रेस से ज्यादा दिया। और अगर और भी जो खुले कोई जो सीट और भी भरने की है, उसको भी भरने का काम हम करेंगे। कह रहे पानी रोकता है हरियाणा, वो कह रहे पानी रोकता है हमारा हरियाणा। देखिए, केजरीवाल झूठ की दुकान खोल रखी है और झूठे बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करता है। राम राम जी। और अब उनकी बातों के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा। राम राम जी। ठीक है जी। तो क्या लगता है कि ठीक है, तो सीएम साहब क्या लगता है कि हरियाणा में कितनी सीट्स आएंगी हमारी यहाँ पे लोकसभा में? क्योंकि कहीं ना कहीं चैलेंज है, लास्ट पर भी 10 आई, 11 कमल के फूल खिल रहे हैं और बड़े मार्जिन के साथ खिल रहे हैं। पर कांग्रेस वाले दिव्यांशु बुद्धि राजा कह रहे हैं कि हमने दोनों सीएमओ को यहाँ फंसा दिया। उनकी स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? हम 90 की 90 विधानसभाओं पे गए, उसको पूछना चाहिए था दिव्यांशु को। आपने भी कहते ये 90 की 90 विधानसभा पे गए, अदर स्टेट में भी गए, राजस्थान गए हैं, उत्तर प्रदेश गए, उत्तराखंड गए, अभी और भी कई स्टेटों के अंदर जाना है
इसके बाद फिर जाएंगे, पंजाब में भी जाएंगे, हिमाचल में भी जाएंगे, कोई फंसे नहीं है, वो अपने आप कह करके खुश हो जाते हैं। तो बीजेपी 400 पार का नारा करेगी? बीजेपी 400 बिल्कुल, देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को 400 पार करेगी। Time now for a very short break. More news and updates on the other side.